Today I am here with the next topic of statistics in pure sense from the chapter first, statistics for economics, class 11. So student, it is the next topic in which we are reading about the statistics definition in pure sense, and here statistics means numerical facts systematically collected, described by Oxford Dictionary. Means in Oxford Dictionary, in plural sense, statistics is defined as a numerical fact systematically collected. Thus, in plural sense, statistics means data. Means in plural sense, we can say that the fact which is a numerical fact which is collected systematically is known as statistics. And in plural sense, we can also say that the fact which is numerically collected, they are called as data. Means data. So here जो भी डाटा न्यूमेरिकल फैक्ट में, यानी कोई भी फैक्ट अगर न्यूमेरिकली कलेक्ट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स होगा, और वही क्या होता है, डेटा होता है. ठीक, ये नाउ बाय स्टैटिस्टिक्स we mean aggregate of fact to a mark extended by multiplicity causes and numerically expressed, enumerated according to a reasonable standard of accuracy. Enumerated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. Means this definition is given by the statistician Howard. So here he says that the statistic mean aggregate of fact mark extended by multiplicity causes. Means whatever data, means fact which are so in a numerical form and they are affected by the multiplicity causes, means not by a single causes affect such data. Such data should be affected by more than one causes and enumerated according, and he is collected according to a reasonable standard of accuracy. Means such data also collected on the basis of reasonable accuracy, standard of accuracy, and collected in a systematic manner. Means data should be collected in a systematic manner for a predetermined purpose. Means when a data is affected by multiplicity causes and he is also collected with a reasonable accuracy for a predetermined objective, so we can say that it is statistics. Now फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेन इन हिंदी. कोई भी डेटा जो कि किसी एक रीजन से अफेक्ट नहीं होता, उसके अफेक्ट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उस डेटा का जो कलेक्शन किया जाता है वो स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, और साथ में उसको कलेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले से अगर डिसाइड है तो वो क्या कहा जाएगा, और उसका एक रिलेशनशिप एक डेटा का दूसरे डेटा से इजीली स्टेबल किया जा सकता है, वही प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स होता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट हेडिंग है, मैं उन हेडिंग्स को बताता हूँ आपको. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, aggregate of fact mark extended by multiplicity of causes. ये फर्स्ट हेडिंग है. मीन्स aggregate of fact. It is our first heading. It is our first heading of characteristics. In this, it is says that the aggregate of facts means whatever data is collected, whatever data is there, they should be aggregate, representative of whole things. Means single data cannot be said as a statistic. Data must be aggregate of fact. Means if any person, if a number only given here 50,
50 in Hindi. Then it cannot be considered as statistic. Here it says that in Hindi 50, English 90, accountancy 90. Then it is called as a statistics. Means data should be aggregate of fact. Single data cannot be considered as statistics, so it is aggregate of fact. Now second heading, mark the extent by multiplicity of causes expressed numerically. Means second, this is our second heading, numerically expressed and multiplicity causes. Means data should be affected by the multiplicity causes. We can say that, for example, the taste and preference of customer, due to change of taste and preference of customers, the price of a commodity increase. मीन्स बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब उसके क्या क्या रीजन हो सकता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस इस वजह से बढ़ गया कि उसके जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हुआ, चेंज हुआ। कंज्यूमर पहले एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीदते थे, अब उस गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स को खरीदने लगे और उसकी प्राइस बढ़ गई। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इम्प्रूव, ठीक। सेकेंड, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो गई तो कास्ट उसका इंक्रीज हो गया तो प्राइस भी इंक्रीज हो गई। थर्ड, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उससे कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीन्स एक्सटेंट ऑफ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मीन्स मल्टीप्लिसिटी कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, कोई डाटा अगर इफेक्ट होता है, कोई चीज अफेक्टेड होता है तो वो भी क्या होगा हमारे लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाता है उसको। जैसे गुड बैड, अब ये है तो गुड बैड को केवल हम कंसीडर स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉट इन क्वांटिटेटिव मेथड, दे आर इन क्वालिटेटिव। सो वी हैव टू कन्वर्ट these in this subject we have to, Hindi is bad, in Hindi you are bad, we cannot consider as statistics. In Hindi if you get 50 marks and in accountancy then we have to comparison this numerical fact and then say that your Hindi is weak and accountancy is good, so it is known it can be it should be in numerical form and we can say that it is numerical express. Now enumerate according to the reasonable standard of accuracy. Means enumerate according to, it means enumerate means the data collection of data. So here it says that enumerate according to a reasonable standard of accuracy means for the accuracy and reliability of data, the investigator himself collect the data according to the area. If the area of investigation is limited, the enumerator should collect the data himself. Means अगर छोटा एरिया है और किसी एक छोटे से गांव का अगर हमको किसी चीज से रिलेटेड डेटा लेना है तो इन्यूमरेटर को खुद वहां जाके डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। वो रीजनेबली डेटा को और काफी एक्यूरेटली कलेक्ट कर सकता है। बट इफ द एरिया इज वेरी लार्ज देन इन सच सिचुएशन ही कैन टेक द डेटा ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। तो वो क्या कर सकता है, बहुत बड़ा एरिया है, प्रॉब्लम होगी अकेले उसको कलेक्ट करने में, तो एस्टिमेशन बेसिस को भी ले सकता है। कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर विद ए प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर मीन्स the data which is collected by the enumerator before the collection, his objective is predetermined. Means why we are going to collect data, what is the need of data, this should be firstly predetermined. ये पहले से predetermined हो जाना चाहिए, तब जाके उस डेटा का कुछ मतलब निकलेगा जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। यानी ये सेकेंड था इन्यूमरेटर, हमारा थर्ड हेडिंग कैरेक्टर, और ये हमारा फोर्थ वन था। यहाँ पे नाउ देन आफ्टर जो डेटा कलेक्ट किया गया है उस डेटा के रिलेशनशिप को देखा जाएगा कि रिलेशनशिप क्या रहा है।
तो ये हमारा डिफिनीशन है स्टैटिस्टिक्स इन प्यूरल सेंस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे हेडिंग वाइज ना लिख के डायरेक्टली आपको यहीं पे समझा दिया इसके डिफिनीशन से ही, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हेडिंग है और इनके अंदर क्या चीज़ें आएंगी। सो नेक्स्ट, नाउ लिसन, आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू रीड स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मीन्स व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So here in scope of statistics, the statisticians or Tippett says that statistics affect everybody and touch life at many points. Means statistics affects everybody and touch life at many point. Means statistics we can see each and every field of our daily life, such as in industries, business, games, etc. Each and every place we can see the statistics. So scope of statistics is very big, very large, and the subject matter classified into the two broad categories, and these categories are here statistical method and applied statistics. Means the subject matter of statistics is classified in two broad categories, first and second. First is subject matter and second is applied statistics. ठीक, so here statistical method. Statistical method according to statistician Jackson and Jackson, statistical methods are procedure used in collection, organization, summarization, analysis, interpretation and presentation of data. Means we are reading our statistical tools. There are 5 things we are read. Collection, organization, presentation, and analysis. So we have read their statistical tools. So here up to the presentation it is written, interpretation is remain. So statistical method are procedure used in collection. जो भी statistical methods collection डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, समराइज और एनालिसिस करके उसको इंटरप्रिटेट और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए वर्क किए जाते हैं, वो सब स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट कैरेक्टर सब्जेक्ट मैटर होता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें हम सारे वर्क जो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा से रिगार्डिंग करते हैं उन वर्क को रखा गया है स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। नाउ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब जब हम सारा वर्क कर लेते हैं तो उसके बाद जो वर्क किया जाता है उस वर्क को अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में रखा गया है। अब वो वर्क क्या होता है, जब डाटा इंटरप्रिटेट कर लेंगे और प्रेजेंटेशन कर लेंगे, तो अब जब प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन जब हो जाता है डाटा का, तो उसके बाद क्या वर्क होता है देखिए। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज इन इंटरप्रेटिंग द डाटा टू टेक डिसीजन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मीन्स जो डाटा हमने इंटरप्रिटेट किया और उससे जो भी अब डेटा इंटरप्रिटेट करने के बाद उसके बाद का जो काम होगा क्या, कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके जो डाटा को इंटरप्रिटेट किए हैं अब उससे डिसीजन लेंगे किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और ये 2 टाइप का होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नाउ लिसन, first one, descriptive applied statistics deal with the use of statistical method to make a problem under study comparable and easily understandable using past and present data. Means डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके जो भी पास्ट स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके जो भी हमें कंपेरेबल स्टडी करते हैं, जिसके द्वारा हम पास्ट और प्रेजेंट डाटा का कंपेयर करते हैं। यानी क्या कि पिछले साल के जो भी डेटा है, मान लो अगर कोई कंपनी है उसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट मान लो ले लो, या किसी सेल का ग्रोथ या
ग्रोथ कितना रहा, ये वो डेटा ले लो और इस साल का डेटा ले लो, उन दोनों डेटा का सारा फैक्टर्स का जब हम इंटरप्रिटेट करके एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उस कंपेरेबल स्टडी को हम डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी क्या, डील विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये डिस्क्रिप्टिव में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड को टू मेक अ प्रॉब्लम अंडर स्टडी कंपेरेबल, किसी प्रॉब्लम को अंडर स्टडी कंपेरेबल में लेके इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाता है, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट डाटा को इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे सेकंड है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो अब देखिए, जो साइंटिफिक होता है, द मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात हो रही है, दोज स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज टू ड्रा द conclusion and take decision to deal with the various social, economic and political problem। Means अब साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स वो होता है जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है और क्या डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, जिसमें हम अपने वेरियस जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो यानी क्या, इसमें हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में हमने देखा कि कौन कौन से हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड है। फिर हमने पढ़ा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हमने ये देखा कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में डाटा को इंटरप्रिटेट करके डिसीजन लिया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर देन आफ्टर वी आर रीडिंग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, दो टाइप होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक साइंटिफिक होता है। डिस्क्रिप्टिव में हमने ये पढ़ा कि डेटा को क्या करते हैं, डेटा को हम कंपेरेबल स्टडी करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट डेटा का क्या करते हैं हम इसमें डिस्क्रिप्टिव में पूरा स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद हमारा साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके कंक्लूजन ड्रा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है।